Good morning, dear students. How are you? I hope you will be fine at home. Once again, welcome in history class. Today we will revise first chapter of history, the French Revolution. The French Revolution. French Revolution, a great social political movement. Social means in the society also changed that during the French Revolution. And political, why we are saying the political movement? Because during the French Revolution there was the monarchical system. So they wants to change in the society. So we can say that French Revolution a great social political change movement which bring following changes in France. यानी कि during the French Revolutions many changes occurred in France. And due to which revolution? Due to the French Revolution. French Revolution took place on 14 July 1789. It means French Revolution occurred in on which date? 14 July or in which year? 1789. Remember it. Why? What were the main reasons behind that? Firstly, we will go ahead that we will discuss the one main important points, because when we will open the books you will find that 7,000 men and women gathered and they attacked they destroyed Bastille prison. So firstly we will discuss what was the story behind that, why they have attacked here. French Revolution took place on 14 July 1789. Rumors spread. What were the rumors spread? 7,000 men, women formed a militia. Why they formed the militia? They listen. The king had commanded troops to move into the city, and rumors spread that he would soon order the army to open fire upon the citizens. एक रूमर फैल गई कि वहां पर कि किंग ने अपनी आर्मी को क्या दे दिया, ऑर्डर दे दिया है कि वो सिटी में जाके किसके ऊपर अटैक करेंगी, लोगों के ऊपर. तो आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड? 7,000 men and women gathered in front of, or where they have gathered, कहाँ इकट्ठे हुए? In town hall, and decided to form a people's what they formed here? People's militia. Militia मतलब a group of army, unofficially army, we can say that. And for which purpose? Broke into government buildings in search of arms. In that hope, they firstly what they have done? They broke into government buildings in search of arms. Arms का मतलब क्या है यहाँ पर? Weapons, हथियारों की तलाश में. The revolutionaries attacked the Bastille prison. With a Bastille prison क्या था? Fortress prison, एक जेल थी वहां की. With a hope, और why they have attacked here? किस आशा में इसके ऊपर अटैक किया? To find hoarded ammunitions. Ammunitions का मतलब वहां पर भी जो भी गोला बारूद छुपा कर रखा हुआ है उसकी तलाश के लिए. For the revolution, और वो गोला बारूद उनको किस में यूज होगा? Ammunitions for the revolution, क्रांति करने के लिए काम आएगा. Bastille was destroyed completely. यानी कि Bastille prison was completely destroyed. And Bastille was hated by all people because it stood for the despotic power of the king. It means Bastille prison किसको stood कर रहा था, किसको represent कर रहा था? Despotic power of the king. Why? Because who is having all the powers? Because in the France which rule was going on? Monarchical system was going on. So revolutionaries what they have done? The commander of the Bastille was killed and 7 prisoners were रिलीज. इसमें क्या हुआ? जैसे ही रिवोल्यूशनरीज ने बेस्टाइल प्रिजन के ऊपर अटैक किया, सबसे पहले किसको मार दिया? कमांडर को. आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड? रिलीज. हाउ मेनी प्रिजनर्स वर रिलीज फ्रॉम हियर? 7 प्रिजनर्स वर रिलीज. पीपल प्रोटेस्ट इन पेरिस. यानी कि व्हाई द व्हाट वर द रीजन कि व्हाई द पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दैट? रेजिंग ऑफ देयर वॉइस अगेंस्ट द हाई प्राइसेस ऑफ ब्रेड. क्योंकि उस समय क्या हुआ? फ्रांस में जो प्राइसेस ऑफ ब्रेड थे, खाने के जो दाम थे वो क्या हो गए? काफी ऊंचाई पर चले गए, काफी महंगे हो गए. तो द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1789 स्टूड फॉर लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी. यानी कि जो हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन है 1789 स्टूड फॉर किसके लिए है? कौन से मेन इसमें स्लोगन्स दिए? इसमें लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी. नाउ वी विल डिस्कस द व्हाट वर द मेन रीजंस. यानी कि व्हाट वर द मेन रीजंस मतलब पॉलिटिकल, social and economic causes, and after that we will see what were the immediate cause for that revolution. Now we will discuss one by one political reason.
Were the causes of the French Revolution. Now we will discuss one by one. What were the reasons? First, social reasons. Second, political reasons. Third, economic reasons. These were the reasons for the long term reasons. यानी कि ये वो reasons थे जो एक टाइम में नहीं बने या एक या 2 दिन से नहीं बने, यानी कि इनके लिए क्या होता गया, फ्यूल इकट्ठी होती गई, यानी कि एक ईंधन इकट्ठा गया. और इमीडिएट रीजंस क्या था, जिसने किसका काम किया, स्पार्क का काम किया, चिंगारी का काम किया. जब ये स्पार्क किसके साथ जाके मिलेगी, जब ये स्पार्क किस में आएगी, जब फ्यूल में आके मिलेगी, तो उससे क्या अराइज होगा, यहाँ पर क्या स्टार्ट होगा, इससे रिवॉल्यूशन. यानी कि दीज वर द सोशल रीजंस, पॉलिटिकल रीजंस एंड इकोनॉमिक रीजंस. दीज वर कॉल्ड द लॉन्ग टर्म रीजंस. इन्होंने इन रीजंस ने किसका काम किया, फ्यूल का काम किया. और इमीडिएट रीजंस क्या था, जिसने किसका काम किया, स्पार्क का काम, चिंगारी का. जब ये स्पार्क आकर फ्यूल में आएगी तो उससे क्या हुआ, यहाँ पर रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ. तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द सोशल रीजंस. ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, French society was divided into 3 states. Like in our country in ancient time, our India was also divided into Varna system, Brahman, Kshatriya, Vaishya and the Sudra. And in our society, Brahman were having the higher position that time. So same here, who were having the highest position? French society was divided into 3 states. And what were the 3? In the first state, clergy. Clergy जो किसके देख रेख करते हैं, कंप्राइजिंग मतलब दे लुक आफ्टर द वर्क ऑफ द चर्च. सेकंड स्टेट्स, नोबिलिटी. वी कैन से दैट द अरिस्टोक्रेट्स, यानी कि रिच पीपल, दोज हु नियर द किंग्स, जो किसके नजदीकी माने जाते थे, किंग्स के. एंड इन द थर्ड स्टेट्स, ऑल द कॉमन पीपल्स. वी कैन से दैट द ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, प्रोफेसर्स, आर्टिशियंस, ऑल पीपल्स केम इन द विच स्टेट, थर्ड स्टेट्स. एंड 60% of the land used by the first and the second states, or 40% land used by the third states. But in the third states, they comprise how much percentage of population? 90%, or they were having only 10% population. And most of the resources used by the first and the second states. And the third states or first and second states, they enjoyed the special privileges by birth. It means they were not paying any taxes in the France. Who were paying all the taxes here? Only common people. Common people means third states. They were paying the mainly 2 types of taxes, tithes and taille. What were the 2 types of taxes they were paying? Which state? Third states. They were paying the 2 types of taxes in the French society. First, tithes, and second, taille. Tithes they were paying to a tax levied by the church, 1/10 agriculture produce. यानी कि क्या था, वो उनकी उपज का जो 1/10% था, वो किसको पे कर रहे थे, डायरेक्ट मतलब चर्च को उनको पे करना पड़ रहा था. सेकंड टैक्स उनको किसको पे करना पड़ता था, टैले, ए टैक्स पेड डायरेक्टली टू द स्टेट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को जो डायरेक्टली उनको. इट मीन्स हु वर पेइंग हियर ऑल द टैक्सेस, ओनली third states. Even those things they were using in their day-to-day life, for that purpose they were also paying the some types of taxes. So it means what is the conclusion here? Here all the taxes paid by the third states. In the third state, among the third states, what arises here? A new class develop हुई, that is called the middle class. Middle class क्या थे? Neither rich, poor, no rich. ना तो ये ज्यादा गरीब थे और ना ही ज्यादा अमीर थे. बट दे वर हैविंग सम एक्सपेक्टेशन. नाउ दे वर अराइजिंग द क्वेश्चंस, व्हाई द फर्स्ट एंड द सेकंड स्टेट्स इज हैविंग ऑल द राइट्स, यानी कि स्पेशल प्रिविलेजेस बाय बर्थ, व्हाई डोंट वी हैव. नाउ दे आर राइजिंग द क्वेश्चंस. और व्हाट दे वर सेइंग कि नाउ द, यानी कि हु होल्ड द पावर, हु विल कंट्रोल द पावर टू द गवर्नमेंट. It means it should be run with the country through the representatives. So in that, who are in the middle class? Mainly professionals, traders, businessmen, artisans, traders. And how their ideas develop, यानी कि common people से new class develop हुई, middle class. और इनको ये भाई, because now they have started to reading the books, novels, और उस समय enlightenment हुआ. Through किससे हुआ? जो उस समय की philosophers थे mainly, जो हम आगे जाके discuss करेंगे one by one.
जैसे जॉन लॉक, मोंटेस्क्यू, वोल्टेयर, इनके आइडियाज को ले लेकर इन्होंने अपने आइडियाज को डेवलप किया. नाउ दे वर अराइजिंग द क्वेश्चंस कि व्हाई डोंट वी आर हैविंग द स्पेशल प्रिविलेजेस. तो क्लियर आई हो. तो इट मीन्स जो सोशल रीजंस का मेन कारण बना क्या था, थर्ड स्टेट्स, बिकॉज थर्ड स्टेट्स इज पेइंग ऑल द टैक्सेस बट ऑल द रिसोर्सेज, मतलब मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज यूज्ड बाय द फर्स्ट एंड द सेकंड स्टेट्स, दे वर नॉट पेइंग एनी टाइप्स ऑफ टैक्सेस, दे वर एंजॉयड, यानी कि दे वर लिविंग ए वेरी लग्जरियस लाइफ. यानी कि ऑल बर्डन हु इज, किसके ऊपर पूरा बर्डन थे यहाँ पर, ओनली थर्ड स्टेट्स. क्लियर, आई होप क्लियर. सोशल रीजंस, I recall our French society was divided into 3 states, first, second and third. First and second states were having the special privileges and third states were not having any special privileges. They were paying all the taxes, especially 2 types of taxes which were tithes and taille. Tithes they were paying to the, जो था अपना 1/10 एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का किसको पे कर रहे थे, चर्च को, और taille था ये किसको दे रहे थे, डायरेक्टली टू द स्टेट. और इसी में यानी कि थर्ड स्टेट से कौन सा एक न्यू क्लास डेवलप हुआ, मिडिल क्लास. नाउ दे आर राइजिंग द क्वेश्चंस कि व्हाई वी डोंट हैविंग द स्पेशल प्रिविलेजेस एंड व्हाई द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट्स इज हैविंग ऑल द स्पेशल प्रिविलेजेस. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पॉलिटिकल रीजंस. ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, Louis XVI was ruling there. But in which year he sat on the throne? In 1774 he ascended the throne. At that time what was the age? 20 years old. जब लुई 16 1774 में गद्दी पर बैठे तो उस समय उनकी एज क्या थी? 20 years. Belongs to which dynasty? Bourbon dynasty. यानी कि लुई 16 belongs to which dynasty? Bourbon dynasty. or we can say which family? Bourbon dynasty. And married princes. और किससे उनकी शादी हुई? Austrian princess Mary Antoinette. Who was the princess? Mary Antoinette. I am recalling again. During the French Revolution, who was ruling there? Louis XVI. When he sat on the throne, what was the age? 20 years old. He married a princess. किससे उनकी शादी हुई? Mary Antoinette. And belongs to which dynasty? Bourbon dynasty. Now we will recall कि what was the reason? Political reasons था कि क्या था कि क्यों पॉलिटिकल रीजंस को हम एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन का रीजन मान के चल रहे हैं. बिफोर द लुई 16, Louis 14 and Louis 16 were ruling there. They were very powerful and strong. But when Louis 16 became very weak, because that किसकी वजह से लुई 16 वीक बनते गए? क्योंकि किसका इन्फ्लुएंस ज्यादा बढ़ने लगा फ्रेंच सोसाइटी में? क्लर्जी और नोबल लोगों का. तो इससे धीरे धीरे लुई 16 क्या होने लगे? वीक. और लुई 16 क्या थे? विलासिता पूर्वक जीवन जीना चाहते थे, यानी कि लग्जरियस लाइफ. मतलब वो दूर फार साइटेड नहीं थे, लैक ऑफ फार साइटेडनेस. मतलब उनको दूर ये नहीं कि भी मुझे अपने फ्रांस के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, मुझे कैसे एक्सपेंसेस करना है, कितना मुझे इसके लिए खर्च करना है. ही वॉज नेवर थिंकिंग. क्योंकि जो मैरी एंटोनिएट थी, जो भी इनको सलाह देती थी वो बिल्कुल उनके गलत गई. इस कहीं भी उसको उस चीज के लिए सपोर्ट नहीं मिला. तो when he sat on the throne, empathy treasure, he founded the empathy treasure. यानी कि लोग under Louis 16, what happened? When he ascended the throne, the royal treasury was empty. Why? हम क्यों कह रहे हैं कि empty treasure? कि उसको खजाना खाली मिला. When he sat on the throne, what happened? Long years of war had drained the financial resources of France. मेनली क्या था कि फ्रांस मोस्टली कंट्रीज के साथ उस समय युद्ध में उलझा हुआ था, और स्पेशली इंग्लैंड के साथ. फॉर हाउ मेनी ईयर्स? 30 years. अब 30 years अगर किसी कंट्री से कोई वॉर हम करते हैं किसी अदर कंट्रीज के साथ, तो उसमें मोस्टली रिसोर्सेज क्या हो जाते हैं? यूज हो जाते हैं हमारे. तो व्हाट हैपेंड? लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस. फॉर दैट व्हाट हैपेंड? एडेड टू दिस वाज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेजेंट कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्सेलिस. यानी कि जो उनका महल था उसके रख रखाव में भी उनको काफी खर्च करना पड़ा. क्यों? अभी मैंने इससे 1 मिनट पहले बोला आपको कि वो कैसी लाइफ जीना चाहते थे? लग्जरियस लाइफ. और जो उनका पैलेस था वर्सेलिस, वो एक शानो शौकत की मतलब एक मिसाल था उस समय. सेकंड, इन्होंने क्या किया? हेल्प 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस. और उस समय जो अमेरिकन की जो 13 कॉलोनीज थी वो किसके अंडर में थी? ब्रिटेन. अब वो ब्रिटेन को नीचा दिखाने के लिए, ब्रिटेन से बदला लेने के लिए
इन्होंने किसकी हेल्प की, अमेरिकन कॉलोनीज की, ताकि अमेरिकन कॉलोनीज को किससे आजादी दिलवाई जा सके, ब्रिटेन से। तो इससे भी उनका काफी रिसोर्सेज यूज हुआ इसमें। इसके लिए इनको क्या करना पड़ा, लोन लेना पड़ा। अब लोन लिया तो क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, यानी कि जो उनको लोन लिया उसके ऊपर कितना परसेंट लोन मतलब इंटरेस्ट लगने लगा, 10% उनको करना पड़ा इसके लिए पे। तो व्हाट हैपेंड, यानी कि ब्रिटेन द वॉर एडेड मोर देन $1 billion लिवरेज to a debt credit, now began to charge 10% interest on loans. So the French government was obliged to spend an increasing percentage its budget on interest payment alone. अब इनके ऊपर यानी कि जो लोन लिया उसके ऊपर 10% बढ़ गया। अब इस 10% को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया, अब टैक्स बढ़ाने का सोचा। टैक्स जब बढ़ाएंगे तो बर्डन किसके ऊपर आएगा, थर्ड स्टेट्स। वो रीजन बनता गया रेवोल्यूशन के लिए, इसके लिए। और एक्सपेंसेस ऑन लग्जरीज ऑफ किंग एंड कोर्ट, और कौन, मैंने अभी डिस्कस किया था, जो लग्जरीज लाइफ जी रहे थे किंग एंड क्वीन, और उनका जो महल था, पैलेस था वर्सेलिस, उसके ऊपर भी वो काफी खर्च कर रहे थे। द स्टेट फाइनली इंक्रीज टैक्सेस टू मीट इट रेगुलर एक्सपेंस सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड यूनिवर्सिटीज। तो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस द social reasons and after that the political reasons. In the social reasons, what were the main reasons? Society was divided into the 3 states, and who were not enjoying the special rights, third states. That was the main reason behind that for the French Revolution. And in the political reasons, what were the main reasons behind that? When he, as when Louis XVI ascended the throne, he found the empty treasure. That was the main reason behind that of the political reasons. Now we will discuss the economic reasons. Economic reasons. In the political reasons, we have discussed when Louis XVI ascended on the throne, he got the empty treasures. So it means in the economic reasons also empty treasures. अगर धनी नहीं होगा तो ये आर्थिक कारण बना, empty treasures था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक महीना। सेकेंड, रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। एक अब क्या हुआ फ्रांस के अंदर रैपिडली यानी कि लगातार तेजी से क्या हुआ, पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई। एंड इन्फ्लेशन इन फूड प्राइस, इन्फ्लेशन मतलब उससे क्या हो गई, उसकी फूड का प्रोडक्ट, फूड प्राइसेस का जो महंगाई दर ज्यादा हो गई, मतलब ऊंचे दामों पर लोगों को फूड प्राइसेस हो गए, महंगे दामों पर फूड मिलने लगा। तो और ये किसकी वजह से हुआ, इन्फ्लेशन इन फूड प्राइसेस के प्राइस कैसे इंक्रीज हुए, इससे हैवी कोल्ड, और हैवी कोल्ड होने की वजह से क्या हुआ, फेलियर ऑफ क्रॉप्स, यानी कि तो वहां पर ठंड ज्यादा हुई, ठंड ज्यादा होने से क्या हुआ, फेलियर ऑफ क्रॉप्स, यानी कि फसल खराब हो गई वहां पर। तो नाउ सर्वाइवल ऑफ क्राइसिस, सर्वाइवल ऑफ क्राइसिस मतलब अब लोग जिंदा रहने के लिए कोशिश करने लगे, क्योंकि फसल खराब हो गई, प्राइसेस उनके हाई हो चुके हैं, और ऊपर से इन पॉपुलेशन बढ़ गई। नाउ वी विल डिस्कस द व्हाट वर द इमीडिएट कॉज। नाउ इमीडिएट कॉज, subsistence crisis. What do you mean by the subsistence crisis? An extreme situation, we can say that an extreme situation where the basic means of livelihood are in danger. It means लोगों की जो बेसिक चीजें हैं, जो लाइवलीहुड है, उसको भी मतलब पूरा नहीं कर पाते, वो खतरे में आ रही है। किससे हुआ, पॉपुलेशन रोज 23 मिलियन इन 1715, यानी कि 1750 में वहां की पॉपुलेशन कितनी थी, ओनली 23 मिलियन, बट इट रोज इन और 28 मिलियन इन 1789। अब आप देखो ऊपर हमने इकोनॉमिक रीजंस में भी डिस्कस किया है, रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। इट मींस जो 1715 में वहां की पॉपुलेशन 23 मिलियन थी 1715 में, अब 1789 में कितनी हो गई, 28 मिलियन। कितना काफी डिफरेंस हो गया, 5 मिलियन इंक्रीज। ये तो फर्स्ट रीजन हुआ कि सबसिस्टेंस क्राइसिस मींस an extreme situation where the basic means of livelihood are in danger. Second point क्या है, rapid increase in the demand for food grain। तो इसकी वजह से क्या हुआ, this led to a rapid increase in the demand for food grain। जब population increase होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, food grain की डिमांड बढ़ेगी ऑटोमेटिकली। बट प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन, पर जो प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन, लेकिन जो पैदावार का था वो उसके साथ नहीं बढ़ा। प्रोडक्शन कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड। क्या हुआ, प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड। डिमांड तो बढ़ रही है पॉपुलेशन इंक्रीज होने से,
पर फूड प्रोडक्शन नहीं बढ़ा। फूड प्रोडक्शन बढ़ने का क्या कारण था, क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि यहाँ पे फसल किस वजह से खराब होगी? हैवी कोल्ड एंड फेलियर ऑफ क्रॉप्स। एक तो फेलियर ऑफ हैवी कोल्ड और फेलियर ऑफ क्रॉप्स। फोर्थ रीजन, नो इंक्रीज इन वेजेस ऑफ लेबर्स। साथ में उनका फूड पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, उनका फूड का प्रोडक्शन का डिमांड बढ़ रही है, पर वो उस रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। नो इंक्रीज इन वेजेस ऑफ लेबर्स, लेकिन जो वेजेस था उनका, जो भत्ता उनको मिल रहा था लेबर्स का, वो भी पूरा नहीं हो पा रहा था, इंक्रीज नहीं हुआ। तो इनकी वजह से क्या हुआ? ड्यू टू सब्सिस्टेंस क्राइसिस, बर्डन ऑफ टैक्सेस ओनली थर्ड स्टेट्स, यानी कि सब्सिस्टेंस क्राइसिस डेवलप हुआ, और सब्सिस्टेंस क्राइसिस डेवलप होने से जो बर्डन ऑफ टैक्सेस है ओनली ऑन थर्ड स्टेट्स, और पूरा बर्डन टैक्सेस का पूरी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, टैक्सेस फुल करने के लिए पूरा बर्डन किसके ऊपर डाल दिया गया? थर्ड स्टेट्स के ऊपर डाल दिया गया। तो इससे क्या हुआ? गैप बिटवीन पुअर एंड रिच वाइडन, यानी कि जो रिच और पुअर के बीच में जो गैप है वो और काफी बनता गया। एंड ड्रॉट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट, वहां पे ड्रॉट सूखा पड़ता, कभी हेल ओलावृष्टि हो गई, उससे रिड्यूस द हार्वेस्ट विच लेड सब्सिस्टेंस क्राइसिस। सब्सिस्टेंस क्राइसिस का तो हमने कहते हैं कभी हैवी कोल्ड हो रही है, कभी ड्रॉट हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है? फेलियर ऑफ क्रॉप्स। फेलियर ऑफ क्रॉप्स से क्या हो रहा है? सब्सिस्टेंस क्राइसिस डेवलप होगी, यानी कि एन एक्सट्रीम सिचुएशन डेवलप होगी वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर इन डेंजर, यानी कि जो वो भी खतरे में पड़ गई, लाइवलीहुड आर इन डेंजर। Sorry, I forgot here. Livelihood are in danger. Now we will discuss the second reasons of the immediate cause. First immediate cause we have discussed subsistence crisis, यानी कि due to the subsistence crisis how the third states people affected, and that was the main reason for the French Revolution. Because for that food prices rose very high. Now second point, a growing middle class and ideas of philosophers, यानी कि how the a growing, यानी कि how one middle class developed that time, and how the philosophers ideas motivated to the middle class people, and how the middle class developed in the third states divided into mainly two groups. Among them one main class emerged, that was the middle class. One group educated professional, traders, officials and manufacturers in one group, and second artisans, peasants and laborers. So it means we can say that one new middle class developed from which state? Third state. And what they were demanding, what were the main demand of the middle class people? There should be no privilege on birth, यानी कि they were now raising the questions कि there should be no special privileges on birth. Those were enjoyed by the first and the second states. Second, there should be government should be there in the country, but controlled by people's representatives, but that government should be chosen by the people, not a hereditary ruler, here we can say that a monarchy rule. And how now we will discuss about again कि philosophers who inspired middle class, कि how the philosopher ideas, कि जो फिलोसफर्स के जो आइडियाज़ थे इन्होंने कैसे मिडिल क्लास को एग्री किया, कि इसके लिए रिवॉल्यूशन के लिए तैयार किया। फर्स्ट जॉन लॉक ने क्या बोला? जो किंग को जो डिवाइन राइट्स मिले हुए हैं गॉड की तरफ से, उसने आपको भगवान का मतलब अवतार माना है, उस चीज़ से उसको मना किया क्या कि रिफ्यूट द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन, कि उसको कोई देवी अधिकार नहीं मिले हुए हैं, एंड एब्सोल्यूट राइट। और उस समय किंग मोनार्क क्या बोलता था? मैं किसका रिप्रेजेंटेटिव हूँ? गॉड का। तो रिफ्यूट द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन, यानी कि जॉन लॉक ने इस पूरे आइडियाज को खत्म किया है कि वो किसी को मतलब राजा को देवी अधिकार नहीं है। तो व्हाट वाज द बुक रिटन बाय द जॉन लॉक? व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट बुक? टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. We will discuss about the three main philosophers and learn these books name also. Two treatises of government written by the John Locke, or which ideas gave a refute the doctrine of divine and absolute rights, यानी कि किसी भी हम राजा को कोई देवी अधिकार नहीं दे सकते हैं. रूसो, जे रूसो propose a form of government based on social contract. जे रूसो book which book was written by the J.J. Rousseau? The Social Contract.
प्रपोज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि विच टाइप ऑफ फॉर्म गवर्नमेंट शुड बी देयर बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट. इट मीन्स in the subjects and the ruler there should be a close relationship. Subjects means kalam we people. So what was our duty कि we are paying the taxes and we are choosing our representatives. ये तो हमारी ड्यूटी बन गई subjects की. And what is the duty, moral duty of the representatives कि he will do the work for the people, ordinary people. So it means propose a form of government based on social contract बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. यानी इन्होंने अपनी बुक दो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है, पीपल्स और जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, जो चूज किया हुआ किंग है, राजा है, या कोई हम गवर्नमेंट जो भी बना रहे हैं लोगों के द्वारा चूज, उनके बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए. लोगों की क्या ड्यूटी होनी चाहिए कि हमें समय समय पर टैक्स पे करना है, हमें अपनी गवर्नमेंट को चूज करना है, पर साथ में गवर्नमेंट की भी क्या ड्यूटी होना चाहिए कि वो लोगों की वेलफेयर के लिए कितना काम करती है. एंड थर्ड, मोंटेस्क्यू. मोंटेस्क्यू का मेन प्रिंसिपल क्या था, द प्रिंसिपल ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर. इन्होंने क्या किया है, पावर को क्या किया, पावर शुड बी डिवाइडेड अमंग द थ्री मेन ऑर्गन. जैसे हम आजकल बोलते हैं देयर आर द थ्री मेन ऑर्गन्स. इन्होंने पावर को डिवाइड कर दिया, गवर्नमेंट की पावर को, बिटवीन द एग्जीक्यूटिव्स, लेजिस्लेचर्स एंड जुडिशरी. ये हम सबको पता ही है कि इन तीनों के क्या क्या फंक्शन है. अभी लेजिस्लेचर्स का मेन काम क्या है, टू फ्रेम लॉज, और उनको इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा, एग्जीक्यूटिव्स. और उनको प्रॉपर रनिंग में चल रहे हैं नहीं चल रहे, ये कौन लुक आफ्टर करेगा, जुडिशरी सिस्टम में. तो मोंटेस्क्यू ने पहले इसमें क्या था, फ्रांस के अंदर पूरी पावर जो लेजिस्लेचर्स, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, किसके हाथ में थी पूरी पावर, ओनली किंग वाज हैविंग ऑल द पावर्स. तो इन्होंने क्या कहा कि पावर शुड बी सेपरेशन बिटवीन द लेजिस्लेचर्स, एग्जीक्यूटिव्स एंड जुडिशरी. और इन विच बुक ही हैज रिटन द स्पिरिट ऑफ लॉ. इन विच ईयर, यानी कि अमेरिका गेन द इंडिपेंडेंस इन 1776. तो इट मीन्स दे ऑल्सो अडोप्टेड दीज आइडियाज. दीज वर गिवन बाय द जॉन लॉक, कि उन्होंने भी इस बात को माना है कि कोई भी राजा देवी अधिकार नहीं मान सकता कि मैं भगवान का अवतार हूँ. सेकंड, उन्हें रूसो के इसका को भी एक्सेप्ट किया है कि रूलर के अंदर और पीपल के बीच में एक गुड रिलेशनशिप होना चाहिए, उनको एक दूसरे की बातें समझ में आनी चाहिए. और उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो मोंटेस्क्यू ने पावर ऑफ डिवीजन की बात कही है उसको भी एक्सेप्ट किया है. अब जो इतने फिलोसफर्स थे, इनकी सभी की बातों को कॉफ़ी हाउसेज में, रेस्टोरेंट्स में, सैलून्स में डिस्कस किया जाने लगा. किसके थ्रू, उनके बुक्स के थ्रू, जर्नल्स के थ्रू. और फ्रांस के लोगों ने भी ये भी देखा कि जब अमेरिका ने ब्रिटेन से, जो उसकी 13 कॉलोनीज ने ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस गेन कर ली, 13 कॉलोनीज ने 1776 में, तो इससे भी वहाँ के फ्रेंच के लोगों को इंस्पिरेशन, जो हमारे यहाँ पे मोनार्की का सिस्टम है, जो डिस्पोटिक रूल है, उसको भी हम रिमूव कर सकते हैं. तो धीरे धीरे यानी कि इन फिलोसफर्स ने मिडिल क्लास के आइडियाज़ को एक डेवलप किया, तो काफ़ी रिवोल्यूशन में काफ़ी हेल्पफुल हुआ. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्टेट्स जर्नल. In the immediate causes of the revolution, third point, meeting of state journal. And a king called one meeting for the state journal on 5th May 1789. What was the reason behind that? Why he called that meeting? For increasing the taxes. Why? For which purpose he called the meeting? For increasing taxes. Why? But he doesn't have the power to impose the taxes alone. मीटिंग तो बुलाना चाहता था स्टेट जनरल की, पर क्या था, किंग के पास क्या नहीं थी. बट ही डजंट हैव द पावर टू इम्पोज द टैक्सेस अलोन, रादर द पावर वाज अलोंग विद द स्टेट्स जर्नल. व्हाट डू मीन बाय द स्टेट्स जर्नल, क्या था यहाँ पे, जो हम बार बार बोले कि स्टेट जर्नल की मीटिंग बुलाई गई. स्टेट जर्नल वाज ए पॉलिटिकल बॉडी टू विच द 3 स्टेट्स, यानी कि 3 स्टेट्स सेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. यानी कि क्या था, स्टेट जर्नल क्या था, एक पॉलिटिकल बॉडीज थी. उसके अंदर क्या था, 3 स्टेट्स के सभी लोग अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वहां पर भेज सकते थे. और ये किसने बुलाई थी मीटिंग, किंग ने. फॉर विच पर्पज, फॉर इंक्रीजिंग टैक्सेस, टैक्सेस में बढ़ोतरी करने के लिए. बट ही कैन नॉट इंक्रीज, हु कुडंट इंक्रीज अलोन टैक्सेस. फॉर दैट पर्पज ही कॉल्ड द मीटिंग ऑफ स्टेट जर्नल. ऑन विच डेट, 5th May और in 1789. एंड व्हाट वाज द कंपोजिशन ऑफ स्टेट जर्नल. जो स्टेट जर्नल जो पॉलिटिकल बॉडी थी वो कैसे बनी हुई थी. फर्स्ट स्टेट 300 मेंबर रहेंगे, पर उनका 300 का वोट की वैल्यू क्या रहेगी, 1. सेकंड स्टेट
मेन मुद्दा क्या था, यहाँ पर टॉपिक क्या था, क्यों ये स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई है, फॉर इंक्रीजिंग द टैक्सेस। अगर अब हम ये सोचते हैं कि अगर फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स अगर मिल जाते तो किसकी वैल्यू बढ़ जाती, दोनों मिलके हो गए, क्योंकि 300 नहीं काउंट करें हम यहाँ पर, वो तो 600 हुए, हम यहाँ पर काउंट करें, इनके 300 की भी सेम वैल्यू है, 300 और 600, तो इनके तो मिलकर वोट कितने हो गए 2, और थर्ड स्टेट का वोट कितना रहा, ओनली 1। तो किसकी पावर बढ़ी हुई है यहाँ पर भी, फर्स्ट और सेकंड स्टेट के। और ये चाहते भी नहीं थे कि जो भी टैक्स बढ़े वो इसके ऊपर बर्डन आए, ऑटोमेटिकली किसके लिए बढ़वाएंगे, अगर बढ़वाना भी चाहेंगे तो टैक्सेस थर्ड स्टेट के लिए। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ऐसा क्या सिचुएशन क्रिएट हुई कि बाद में थर्ड स्टेट्स के लोगों को वोट आउट करना पड़ा, यानी कि जो किंग ऑफ पैलेस मतलब उसमें वर्सेलिस में, ग्राउंड ऑफ वर्सेलिस मीटिंग बुलाई गई थी, वहां छोड़कर उनको जाना पड़ा वहां से। अब क्या था, फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों को एक रो में फर्स्ट स्टेट के लोग बैठेंगे, सेकंड में ऐसे आमने सामने फेस करके, बट थर्ड स्टेट पीपल विल स्टैंड लाइक दिस, वो इनके चारों तरफ ऐसे खड़े रहेंगे, बैठेंगे भी नहीं, यानी कि फर्स्ट स्टेट ऐसे बैठेगा, सेकंड स्टेट की ये पोजीशन रहेगी, और थर्ड स्टेट ऐसे इनके चारों तरफ खड़े रहेंगे। अब हमने देखा था कि मिडिल क्लास में भी 2 पार्ट्स में डिवाइड थी, एजुकेशनल ऑफिशियल्स, मैन्युफैक्चरर्स, ये थे, तो उस उन लोगों को ही परमिशन थी जाने की वहां पर। उन्होंने अपने कितने लेटर्स वहां पर लेके गए थे, 40,000 लेटर्स, 40,000 लेटर लेके गए वो वहां पर अपने। और उसमें भी उन्होंने क्या किया था, पीजेंट्स, आर्टिशियंस एंड वीमेन वर डिनाइड टू एंट्री टू असेंबली, यानी कि पीजेंट्स को, आर्टिशियंस को, वीमेन्स को परमिशन नहीं दी, किसके अंदर, इस असेंबली में परमिशन के लिए। ओनली जो फर्स्ट ग्रुप था मिडिल क्लास का, उन्हीं को ही परमिशन मिली इसके अंदर जाने के लिए। अब इन्होंने यहाँ पर क्या रूल था, यहाँ पर वोटिंग रूल, ईच स्टेट 1 वोट, ईच स्टेट मतलब फर्स्ट स्टेट 1 वोट, सेकंड स्टेट 1 वोट, और ये अगर ज्यादा मेंबर भी हैं तो इनकी वैल्यू कितनी रहेगी, ओनली 1 वोट, 1 पर्सन वोटिंग रूल, ईच स्टेट 1 वोट। बट नाउ थर्ड स्टेट व्हाट वर दे डिमांडिंग, 1 पर्सन 1 वोट। इन्होंने डिमांड की कि जैसे आपके 300 मेंबर हैं तो आपके वोट की वैल्यू कितनी आए, 300, अगर हमारे 600 मेंबर है तो हमारे वोट की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 600। इन्होंने राजा से ये डिमांड की, और ये किस प्रिंसिपल पे था, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, क्योंकि इन्होंने फिलोसफर्स के आइडियाज को लेकर ये बात कही। जो मिडिल क्लास के लोग थे यहाँ पर, इन्होंने थर्ड स्टेज में किस बात को ध्यान में रखे कि जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल आइडिया है कि 1 पर्सन 1 वोट, जो हम आजकल अपने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में बोलते हैं ना, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। बट किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल, किंग ने इस प्रपोजल को मानने से इनकार कर दिया। एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, थर्ड स्टेट्स वॉकड आउट। जैसे ही किंग ने इस प्रपोजल को कि आई विल नॉट एक्सेप्ट योर प्रपोजल, तो व्हाट हैपेंड, 3 स्टेट्स पीपल, यानी कि 3 स्टेट ना, थर्ड स्टेट दे वॉकड आउट, यानी कि वो वहां से चले गए। नाउ व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, फोर्थ पॉइंट, assembled in the hall of an indoor tennis court। अब वो कहाँ जाकर इकट्ठा हो गए, assembled in the hall of an indoor tennis court, कहाँ पर इकट्ठे हो गए सभी जाकर, इंडोर टेनिस कोर्ट में, in the ground of Versailles on 20th June 1789। जो हम टेनिस कोर्ट के नाम से जानते हैं, क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो थर्ड स्टेट्स के लोग हैं जो वॉकड आउट होकर गए, तो कौन सी डेट में गए, 20th जून और 1789 को टेनिस कोर्ट में, और कहाँ ग्राउंड में, वर्सेल्स में। एंड दे डिक्लेयर देमसेल्व्स एज ए नेशनल असेंबली। उन्होंने अपने आप को वहां पर क्या डिक्लेयर कर लिया कि वी आर द असेंबली, कि अब हम कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे। एंड ड्राफ्टेड ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस, कि हम अब फ्रांस के लिए एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। उसके अंदर क्या करना था, टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क, कि हमें उसमें मोनार्क की पावर को क्या करना है, लिमिट करना है, लिमिट का मतलब कम करना है वहां पर। एंड दैट होल प्रोसेस वाज लेड बाय मिराबियू एंड एबे सीएस। अब ये पूरा प्रोसेस किसके द्वारा लीड किया गया, किसने इनको परमिशन दी, किसने इनके हेल्प की इस काम के लिए, मिराबियू एंड एबे सीएस। अब ये कौन थे दोनों, दे बोथ वर पॉलिटिकल थिंकर्स। Mirabeau was born in a rich family, noble family, but he was convinced of the need to do away with a society of feudal privileges। हालांकि मीराबियो एक नोबल फैमिली में बोर्न हुए थे, फिर भी वो उस बात से इनकार करते थे कि कुछ लोगों को जो फ्यूडल प्रिविलेजेस, जो सामंतवादी अधिकार जो मिले हैं, स्पेशल प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, वो उनसे ले लेने चाहिए सोसाइटी से। तो फॉर दैट पर्पस ही ब्रॉट आउट ए जर्नल एंड डिलीवर्ड पावरफुल स्पीचेस टू द क्राउड he assembled at
बन सकता है हु वाज एबेसियस? ओरिजिनली ए प्रीस्ट। एबेसियस कौन थे? ओरिजिनली ए प्रीस्ट एंड रोट एन इन्फ्लुएंट पैम्फलेट कॉल्ड व्हाट इज द थर्ड स्टेट। इन्होंने एक पैम्फलेट लिखा, उसका नाम था व्हाट इज द थर्ड स्टेट। क्लियर अप टू हियर? यानी कि हमने ये पढ़ा मीटिंग ऑफ स्टेट जर्नल की, जो मीटिंग ऑफ स्टेट जर्नल की बुलाई 5 मई 1789। ये पूरा बताया कि स्टेट जर्नल क्या थी, एक पॉलिटिकल बॉडी थी जिसमें सभी स्टेट्स को अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को सेंड करने का राइट था। फिर उसमें हमने ये देखा कि स्टेट जर्नल का क्या कंपोजिशन था, वन स्टेट वन वोट, वन स्टेट वन वोट। और व्हाट वर द डिमांड ऑफ द थर्ड स्टेट? दे वर डिमांडिंग ईच मैन वन वोट, यानी कि they have adopted the idea of the democratic principles, but king rejected this idea, and after that what happened? Third states peoples walked out from here, and after that what they declared here in the tennis court hall, they ground in the 20 June 17 they declared themselves as a national assembly कि अब हम कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे। where they drafted a new constitution for the France, or what was the main aim of the drafting that constitution? To limit the power of the monarch, and then who led by France जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना, मिराबियो एंड एबेसियस। और एबेसियस ने जो पंपलेट लिखा उसका नाम क्या था? व्हाट इज द थर्ड स्टेट्स। पर इसी के साथ साथ ये रूमर भी फैल गई थर्ड स्टेट में कि पता नहीं टैक्सेस बढ़े या नहीं बढ़े, पर लोगों के अंदर ये रूमर फैल गया कि राजा ने टैक्सेस बढ़ा दिए, और वो पूरा बर्डन किसके ऊपर आ गया? थर्ड स्टेट पर। अब थर्ड स्टेट के लोग और गुस्सा हो गए, और साथ ही साथ ये रूमर भी फैल गया कि किंग ने अपनी, हमने जो फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा था, किंग ऑर्डर द ट्रूप्स, किंग ने अपनी उसको ट्रूप्स को ऑर्डर दिया ना कि आप जाओ और लोगों के ऊपर अटैक कर दो। और इससे लोगों के अंदर क्या रूमर हुआ, इससे लोगों ने क्या किया, अपना 70,000 लोगों ने अपना एक ग्रुप बनाया, 7,000 लोगों ने अपने ग्रुप बनाया, मैन और वुमेन मिलिटिया मतलब था मिलिट्री, अपनी अनऑफिशियल मिलिट्री यानी कि ग्रुप बना लिया आर्मी का। तो उन्होंने बिल्डिंग्स को ब्रोक करना शुरू कर दिया, और साथ ही साथ उन्होंने फोर्टिस जो बेस्टाइल का जो प्रिजन था, फोर्ट्रेस प्रिजन था जो, उसके ऊपर अटैक कर दिया। किस आशा में कि वहां पर शायद किंग ने एम्यूनेशन यानी कि गोला बारूद हथियार छुपा कर रखे हुए, अगर हम वो गोला बारूद ले लेंगे तो किसके में यूज हो जाएंगे? रिवॉल्यूशन में हमारे काम आएंगे। और जैसे उन्होंने बास्टाइल के ऊपर अटैक किया, वहां पर जो कमांडर था उसको मार दिया गया, किल कर दिया गया, और साथ ही साथ जितने भी 7 पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनको रिलीज करवा लिया गया। और जो ये बास्टाइल प्रिजन है ये स्टूड फॉर द डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग, क्योंकि जितने भी पॉलिटिकल अपोनेंट्स थे, जो मतलब जो किंग के खिलाफ जो भी कार्रवाई करते थे, उनको कहाँ रखा जाता था? इस बास्टाइल प्रिजन में। अब लोगों ने इसको पूरी तरीके से कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया, इवन उसके छोटे छोटे टुकड़े पत्थर के वो मार्केट में बेचना शुरू कर दिया, और लोगों को किस संदेश के साथ ये कहने लगे कि अगर आप ये खरीद रहे हो तो मतलब आप ये क्रांति की याद के लिए, अगर आप जो करना चाहते हो क्रांति के लिए, तो उसकी याद में आप ये पत्थर खरीदो। यानी कि लोगों ने उस वर्सटाइल प्रिजन को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। तो ये रूमर फैला हुआ था लोगों के अंदर, और साथ ही साथ ये था कि टैक्सेस हो गया। अब नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक। France became a constitutional monarchy. How the France became a constitutional monarchy? Because the third states people walked out from the state general assembly, and after that they declared themselves as a national assembly. Or what was the main of the national assembly? To draft a constitution for the country. National Assembly completed the draft of the constitution in 1791. यानी कि नेशनल असेंबली ने वो ड्राफ्ट बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन कब तैयार किया पूरा बनाकर? 1791 में। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूशन? टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क, कि अब मोनार्क की पावर को यानी कि किंग की पावर को क्या करना है? कम करना है। नाउ द पावर्स वर सेपरेटेड, नाउ यानी कि जो किंग से पावर लेकर अब किस में सेपरेट कर दी गई? बिटवीन द डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, लेजिस्लेचर्स, एग्जीक्यूटिव्स एंड जुडिशरी। फर्स्ट पॉइंट अंडरस्टूड कि in which year constitution made? 1791, and that was the constitution made by the representatives of the third state. ये क्वेश्चन में सर नेशनल असेंबली, who formed the national assembly? The representatives of the third state, and the third state people representatives
में ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री। नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर तैयार किया। एंड फोर्थ, गिव powers to make laws to the national assembly. Now the power, who gave the power to make laws to the national assemblies? यानी कि अब कंट्री के लिए लॉ बनाने का काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दी गई? नेशनल असेंबलीज विल मेक द लॉज फॉर द कंट्री। और क्या प्रोविजन किया गया इसके अंदर? द राइट टू वोट वॉज गिवन टू मैन अबव 25 ईयर्स ऑफ एज। यानी कि यहाँ पर किन लोगों को वोटिंग राइट्स दिया गया? जिनकी एज कितनी थी? 25 ईयर्स। बट इसके साथ क्या और था? हु पेड टैक्सेस टू एटलीस्ट 3 days ऑफ लेबर्स वेजेस। ये वोटिंग राइट्स उन्हीं को दिया गया था जितना उनकी मंथली जो इनकम है उसका 3 दिन का वो किसके रूप में दे पाएँ? एज ए टैक्स के रूप में जो पे कर पाएँ। यानी कि 30 days की जो सैलरी है उसमें से 3 days का वो किसके रूप में पे कर पाएँ? एज ए टैक्स के रूप में। उन्हीं को वोटिंग राइट्स दे दिया। अगर वो भी क्या लिखा? ओनली मैन, और एज अबव 25, यानी कि जो बिलो 25 मैन है, यूथ हैं, दे दैट टाइम दे कुडंट कास्ट देयर वोट एंड दे वर कॉल्ड इन एक्टिव सिटीजन्स। और ये किस में कहलाए? एक्टिव सिटीजन कहलाए। उस समय पॉपुलेशन कितनी रोज हो गई थी? अप्रोक्सीमेटली 28 मिलियन। और 28 मिलियन में से कितने मैन एक्टिव सिटीजन्स में आए? 4 मिलियन। यानी कि 4 मिलियन मैन को वोटिंग राइट्स दिया गया। वो भी किस बेसिस पर? कि हु पेड टैक्सेस टू एटलीस्ट 3 days ऑफ ए लेबर्स वेजेस। द रेस्ट ऑफ ऑल मैन, ऑल मैन का मतलब यहाँ पर क्या है? जो 3 दिन का टैक्स के रूप में अपना वेतन नहीं चुका पा रहे थे उनको रखा गया। एंड वीमेन, चिल्ड्रन एंड बिलो द एज ऑफ बिलो द 25, यानी कि यूथ को भी इसमें ही रखा गया। किसमें? पैसिव सिटीजन्स में। ये क्या कहलाए? जो टैक्स पे नहीं कर पा रहे थे, जो बिलो 25 थे, वीमेन एंड चिल्ड्रन, उनको किस में रखा गया? पैसिव सिटीजन्स में। एक्टिव सिटीजन में कौन रखे गए? जो वोटिंग राइट्स था और 3 दिन का एज ए टैक्स के रूप में दे सकते थे वेजेस। और पैसिव सिटीजन्स में कौन कहा गया था? दे डोंट हैव द वोटिंग राइट्स। उनको वोटिंग राइट्स नहीं दिया गया। दे वर कॉल्ड इन द पैसिव सिटीजन्स। और ये अप्रोक्सीमेटली कितने थे? 3 मिलियन। एक्टिव में कितने थे? 4 मिलियंस। और पैसिव सिटीजन्स में 3 मिलियन। और नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन किससे स्टार्ट हुआ? बिगेन द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द सिटीजन, कि सभी सिटीजन्स को राइट्स मिलने चाहिए। विच टाइप ऑफ राइट्स? फॉर एग्जाम्पल राइट्स सच एज द राइट टू लाइफ, राइट टू स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ। दिस टाइप ऑफ राइट्स should be given to each and every person. There should be no discrimination कि you are the first state, second states and the third states. These rights were given as natural, यानी कि जो ही rights हमें, जैसे right to life, right to speech, freedom of opinion, equality before of law, these were given as natural and inalienable. Inalienable could not be taken away, यानी कि कोई हमसे इनको छीन नहीं सकता है। यानी कि जो बोलते हैं ना बाय बर्थ, ये तो मेरे राइट हैं, जन्म से मुझे मिले हुए हैं। इन अलाइनेबल कि नोबडी कैन टेक, कोई हमसे छीन नहीं सकता। बिकॉज दे बिलोंग टू द ह्यूमन बींग्स बाय बर्थ, क्योंकि ये राइट्स ह्यूमन बींग को कब से मिले हुए हैं? जब से वो बोर्न हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस द मैनी टॉपिक्स टुडे। तो व्हाट रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स we will cover in the next video. I hope you will watch the video carefully and you will make the important points. If you are finding any problem anywhere else, so personally you can call me and ask me. Thank you.